हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का टॉपिक फ्रॉम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, फार्मूला मास। ओके बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास, करेक्ट। पहले एटॉमिक मास पढ़ा, एवरेज एटॉमिक मास एंड देन मॉलिक्यूलर मास। ओके, एटॉमिक मास क्या है? इट इज़ द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट। Okay, or what about the molecular mass? It is the sum of all the atomic mass of an every element present in the molecule, that is called molecular mass, correct। तो जो भी molecular formula है, समझो कि वाटर है H2O, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास को एड अप कर लो, then you will be getting the molecular mass। समझ गए? ओके, नेक्स्ट इज द फार्मूला मास। ना फार्मूला मास इज सेम इज दैट ऑफ molecular mass only। okay, फार्मूला मास इज एग्जैक्टली सेम लाइक दैट ऑफ मॉलिकुलर मास। अब वो कैसे है देखते हैं, चलो। नाउ हियर द फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस is the sum of atomic masses of the atom present in the formula। okay, formula mass क्या है? a formula mass of a substance is the sum of atomic masses of atom present in the formula। it is like same of that molecular mass only। molecular mass भी तो वही था, तो molecular mass of a substance is the sum of atomic masses of every element present in the molecule। but यहाँ पे molecule का molecule word replace हुआ है by the formula। अब ये formula word किसके लिए use करता है? generally this word is used for the ionic compound, understood। so the formula mass is actually for the ionic compound। okay बच्चों, two types of compounds are there, one is organic compound and second one is inorganic compound, also called as covalent compound and the organic compound। organic और covalent compounds are those which contains carbon in their structure। 10th standard में हमने carbon and compound chapter पढ़ा है ना। so the carbon and compound generally called organic compound containing covalent bond in it। okay, and what about the ionic bond? ionic bond में क्या होता है? there is a transfer of electron। okay, so this type of a compound are known as inorganic compound containing cation and anion, जैसे सोडियम क्लोराइड है NaCl, Na plus ions and Cl minus ions, that is inorganic compound or the ionic compound। and methane is a organic compound because what it contains the covalent bond, a bond which is formed by sharing of electron pair between carbon and the hydrogen, understood। okay, so जो molecular mass जो use कर रहे थे word, that is for the organic compound and here the formula mass is nothing but for the inorganic compound or the ionic compounds। तो the method is same actually। यहाँ पे भी क्या करना है, whatever आपको number of elements दिख रहा है, उन नंबर ऑफ एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को ऐड करना है, वट एवर द नंबर गेटिंग एट द एंड, दैट इज योर फार्मूला मास फॉर द सब्सटेंस, अंडरस्टूड। अब देखते हैं एग्जाम्पल विल स्टार्ट विद द NaCl। अब वो NaCl इसको ionic compound क्यों है? why it is not considered as a molecule or the organic compound generally? because see this NaCl do not contain discrete molecule as the constituent unit। okay, discrete molecule नहीं है as a constituent unit। generally in this compound the cation and anions are arranged in a three-dimensional structure। ठीक है, the cation is what? having plus charge, no? so Na plus ions and the anion, that is Cl minus ions, negatively charged species, arranged in a three-dimensional structure, 3D way में arrange होता है वो। generally यहाँ पे Na plus ions, especially if we talk about the NaCl, no? so Na plus ions is surrounded by the 6 Cl minus ions in such a way the number of Na plus and Cl minus ions are arranged in 3D way to forms the NaCl। okay, in regular practice हम लोग उसको molecule ही कहते हैं। in regular practice we used to call it as a molecule only, but in actual it is the ionic species। okay, so the term formula mass is used for the ionic compound instead of molecular mass। समझ रहे हैं? formula mass किसको यूज करेंगे? for the ionic compound instead of what? molecular mass। ओके चलो, सो फिर एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यू आर अवेयर ऑफ दैट मॉलिक्यूलर मास, तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा समझने के लिए। सी हियर द फार्मूला मास ऑफ सम कंपाउंड आर एज फॉलोज। फर्स्ट इज NaCl। NaCl में वन इज Na, वन सोडियम एटम, वन क्लोरीन एटम। so atomic mass of sodium is 23, chlorine 35.5, so it is 58.5, करेक्ट ना? 58.5 U, दैट इज यूनिफाइड मास, अंडरस्टूड। ओके, अब बच्चों जो मैंने लिस्ट दी थी आपको लास्ट वीडियो में, द एलिमेंट अलॉन्ग विद देयर एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास नॉट एटॉमिक नंबर,
सो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप वो पढ़े, आप उसको याद रखें, सो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं द मॉलिक्यूलर मास। और बच्चों ये बहुत ज़रूरी है हमें, क्योंकि हम इस टॉपिक के बाद, दिस इज़ द लास्ट थ्योरेटिकल टॉपिक एक्चुअली फ्रॉम आवर चैप्टर, उसके बाद हम लोग सम करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, और वहाँ पे आपको वो नॉलेज ज़रूर बहुत चेक करने पड़ेगा कि बिकॉज द कंपाउंड्स नेम इज़ गिवन or sometimes the formula is there and you have to find out the molar mass of the substance, क्योंकि वो सम सॉल्व करने के लिए मोलार मास की ज़रूरत पड़ेगी every time. Okay, so please do it. Second compound is CuNO3 twice, cupric carbonate or copper carbonate. So here copper देखो, but first of all we need to understand how many number of atoms of every element present in the compound. Okay, I repeat, how many number of atoms of every element present in the compound, that also we need to understand. यहाँ पे copper कितना है 1. How many number of hydrogens are there? Sorry, nitrogen कितने हैं nitrogen? 2 nitrogens are there. देखो क्योंकि NO3 2 times लिखा है, NO3 ब्रैकेट नीचे 2, इसका मतलब क्या हुआ 2 नाइट्रोजन, एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन आर 3 ऑक्सीजन है इंटू 2, दैट इज 3 2s are 6, सो 6 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, करेक्ट। अब कॉपर का एटॉमिक मास है 63.5 यूनिफाइड मास, प्लस नाइट्रोजन 14 बट इंटू 2 करेंगे बिकॉज 2 नंबर ऑफ नाइट्रोजन आर देयर, एंड ऑक्सीजन 16 इंटू 6, so overall it comes 187.5 unified mass. Okay, one more compound we'll see, that is calcium sulphate, CaSO4, again calcium 1, sulfur 1, and how many oxygen atom? 4 oxygen atom. Atomic mass of calcium 4040, sulfur 32. What about oxygen? 16 इंटू 4 करेंगे हम लोग, सो 40 प्लस 32 प्लस 64, इट कम्स 136 यूनिफाइड मास. अंडरस्टूड बच्चों? सो यू नीड टू ओनली एड द एटॉमिक masses of every element you are getting in the formula mass. You'll be getting the means in the formula, so you'll be getting the formula mass over there. It is like that of molecular mass only बच्चों. बट see, जनरली हम लोग इन रेगुलर प्रैक्टिस में दिस इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला मास ये वर्ड यूज़ नहीं करते. एक्चुअली हम लोग ये वर्ड यूज़ नहीं करते इन रेगुलर प्रैक्टिस. हम लोग इसको मॉलिक्यूल ही कंसीडर करते हैं और उसका मॉलिक्यूलर मास ही यूज़ करते हैं. ओके, इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास एक टर्म आ जाएगा मोलार मास. एट द एंड ऑफ द वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी द मोलार मास ऑल्सो. तो मोलार मास क्या है वो भी पढ़ेंगे, तो मोलार मास ही यूज़ कर लेते हैं. सो प्लीज़ डोंट थिंक कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ये लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाएगा कि कैसे आइडेंटिफाई करें ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज़ करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए फार्मूला मास वर्ड यूज़ करेंगे. सो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, डोंट वरी अबाउट दिस फार्मूला मास ओनली. विल यूज़ द स्पेसिफिक टर्म फॉर बोथ द टाइप ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक. सो आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सिंपल मेथड ही रहेगी. ओके, चलते हैं फिर आगे वाली टॉपिक पे, मोल कॉन्सेप्ट एंड द मोलार मास. सी हियर, mole concept and the molar mass. One by one we'll learn both the term mole concept and the molar mass. I tell you one thing बच्चों about the mole concept. जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, आई रिपीट, हाँ, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक ये मोल कॉन्सेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. ओके, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, आप 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, फिर आप मे बी हायर क्लास में आप बीएससी कर रहे हो तब केमिस्ट्री पढ़ोगे, या फिर मे बी इंजीनियरिंग में भी गए तो फर्स्ट ईयर में आपको, या फिर डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर में आपको अप्लाइड साइंस रहता है, आई थिंक सो, तभी भी आपको केमिस्ट्री रहेगा वहाँ पे, और वहाँ पे भी आपका ये मोल कॉन्सेप्ट, ये टॉपिक आता रहेगा. सो प्लीज़ लिसन केयरफुली, अच्छे से नोट्स को पढ़ लो. ओके, उसको नोटबुक में लिखना है और उसको वापस प्रैक्टिस करनी है आज के आज ही. ओके, सो मोल कॉन्सेप्ट बहुत 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 ही ज़रूरी है एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, क्योंकि ये मोल कॉन्सेप्ट 11th स्टैंडर्ड में, जैसे मैंने कहा, यूज़ करेंगे, नो डाउट अबाउट दैट, बट 12th स्टैंडर्ड में तो एवरी टाइम वी आर गोइंग टू यूज़ दिस कॉन्सेप्ट. अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट द मोल कॉन्सेप्ट. ओके, नंबर ऑफ मोल. So we'll start with the definition again. 1 mole of a compound. 1 mole is the amount of a substance that contain as many entity or particle as there are atom in exactly 12 gram or 0.012 gram of the C12 isotope. Okay, 1 mole क्या है? 1 mole is the amount of a substance that contains as many entities or particle as there are atoms in exactly 12 gram or 0.012 kilogram of the C12 isotope. Okay, C12 isotope क्या है? C12 isotope is considered as a standard carbon 12 isotope. Correct?
इट इज़ कंसिडर एज अ स्टैंडर्ड. सो उसका वॉट एवर वेट होगा, वॉट एवर वेट होगा फॉर वॉट C12 इज कंसिडर एज अ स्टैंडर्ड. तो जितना भी हम समझ लो कि पार्टिकल्स है, ओके, इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ओके, वॉट एवर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स present in C12 isotope when we weight 12 gram of carbon, okay, C12, then whatever number of particles are there, it is said to be the 1 mole. Understood? उसको क्या कहेंगे हम लोग? 1 mole कहेंगे. Okay, समझ गए? I repeat once again, 1 mole is the amount of substance that contain as many entity or particle as there are एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ दी C12 आइसोटोप. ओके, सो अगर आपके पास C12 आइसोटोप है, उसको 12 ग्राम वे कर लो. अब 12 ग्राम C12 आइसोटोप है, कार्बन 12 आइसोटोप है आपके पास, तो 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे उसको कहेंगे 1 मोल सब्सटेंस. उस अमाउंट को क्या कहेंगे? 1 मोल सब्सटेंस. अंडरस्टूड? अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि वाई ओनली द C12 कार्बन एटम इज टेकन, क्यों ये C12 ही लिया है? ओके, वाई इट इज टेकन? क्योंकि कार्बन इज द स्टैंडर्ड वन विच इज द स्टेबल एट द नॉर्मल टेम्परेचर. अंडरस्टूड? चलते हैं फिर. हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर देयर इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप? दैट विल गोइंग टू सी. ओके, नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन. देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं. लेट कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप्स. ओके, 12 ग्राम ऑफ C12 आइसोटोप. अब ये 12 ग्राम ही क्यों लिया है बच्चों? वाई इट इज टेकन ओनली 12 ग्राम? क्योंकि एटॉमिक मास कितना है कार्बन का, याद करो तो. एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12. दैट्स वाई इट इज कंसिडर एज अ 1 मोल. जितना भी एटॉमिक मास होगा फॉर द एलिमेंट, ओके, अगर कोई एलिमेंट है और तो फिर उतना जितना भी उसका एटॉमिक मास होगा उतना सब्सटेंस हम उसको ग्राम में वे कर लेंगे. इट बी रिगार्डेड एज 1 मोल. आई रिपीट, हाँ, इफ़ इट इज़ अ एटम, ओके, आइसोटोप किसके होते हैं? आइटम्स के होते हैं ना, या फिर एलिमेंट के कह सकते हैं हम लोग. सो वो एटम या फिर एलिमेंट है, उसका वॉट एवर एटॉमिक मास होगा, जैसे कार्बन का है 12, तो 12 ग्राम अगर हम लोग सब्सटेंस कार्बन ले लेते हैं, इट इज़ कंसिडर एज अ 1 मोल कार्बन. अंडरस्टूड? सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास? 16. तो 16 ग्राम ऑक्सीजन ले लो, इट कंसिडर एज अ 1 मोल ऑक्सीजन. अंडरस्टूड? व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन? 35.5. सो 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन कंसिडर एज 1 मोल क्लोरीन. अब ये तो हो गया फॉर द एटम्स. व्हाट अबाउट मॉलिक्यूल? समझ लो मॉलिक्यूल है तो वॉट एवर मोलार मास है, आई एम सॉरी, मॉलिक्यूलर मास है, वो मॉलिक्यूलर मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम ले लो, इट कंसिडर एज अ 1 मोल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. जैसे वाटर का मोलार मास है, मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम. अंडरस्टूड ना? वाटर मॉलिक्यूलर मास इज 18, सो 18 यूनिफाइड मास. सो इफ़ वी वे 18 ग्राम ऑफ वाटर, अगर आपने वे कर लिया कितना? 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो वो बन जाएगा 1 मोल वाटर. अंडरस्टूड? 18 ग्राम वाटर इक्वल्स टू 1 मोल वाटर. व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4? सल्फ्यूरिक एसिड कितना है मॉलिक्यूलर मास? 98 यूनिफाइड मास, 98 U. तो इफ़ वी वे 98 ग्राम ऑफ H2SO4, ओके, 98 ग्राम ऑफ H2SO4, इट इज़ कंसिडर एज 1 मोल H2SO4. यानी देखो सभी सब्सटेंस तो 1 मोल है, पर उन सबका मास अलग अलग है. वाई? बिकॉज एवरी एलिमेंट और एवरी कंपाउंड हैव द डिफरेंट एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास रिस्पेक्टिवली. अंडरस्टूड? एलिमेंट का एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होगा, इसीलिए उन सब का वेट भी डिफरेंट आएगा. इफ ऑल द कंपाउंड्स आर 1 मोल देन ऑल्सो. अंडरस्टूड? चलते हैं कैलकुलेशन फॉर द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ कार्बन 12 आइसोटोप, यानी 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. मास ऑफ द C12 एटम 1.992648 इंटू 10⁻³ ओके, ये उसका मास है. ओके, आगे बढ़ते हैं. मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 1 मोल कार्बन एटम कितना? एटॉमिक मास 12, सो 12 ग्राम. ओके, लेट्स सी द नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम ऑफ C12, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12. सो क्या करना है? मास अपॉन मतलब
number of moles upon mass of one carbon atom. Okay, mass of one C12 atom, that we will going to see. So the 12 upon 1.992648 into 10 raised to minus 23, 10 raised to minus 23 ऊपर गया तो 10 raised to plus 23 हो जाएगा. So तो ओवरऑल नंबर कम्स 6.0221367 into 10 raised to minus 10 raised to 23. So this number is known as constant number. Okay, so every one mole of a substance containing this particular number कितना होगा 6.0221367 into 10 raised to 23. कितना है, repeat 6.0221367 into 10 raised to 23. Understood? So it is said that one mole is the amount of substance that contain, one mole क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.0221367 इंटू 10 raised to 23 पार्टिकल्स और एंटाइटीज. पार्टिकल्स और एंटाइटीज यानी इट में बी एटम, मॉलिक्यूल और दी आयंस, जैसे Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस है. अंडरस्टूड? सो एवरी वन मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन्स फिक्स नंबर ऑफ अ पार्टिकल्स और दी एटम्स और ऑफ अ मॉलिक्यूल. कितने हैं वो 6.0221367 इंटू 10 raised to 23. ओके, आगे बढ़ते हैं. दिस नंबर 6.0221367 इंटू 10 raised to 23 इज नोन एज एवोगाड्रोस कांस्टेंट. ओके, इस पर्टिकुलर कांस्टेंट नंबर को क्या कहेंगे, एवोगाड्रोस कांस्टेंट. अंडरस्टूड? प्लीज रिमेंबर दिस नंबर 6.0221367 इंटू 10 raised to 23. एक्चुअल रेगुलर प्रैक्टिस में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग 6.022 ही लेंगे. 6.022 इंटू 10 raised to 23, 6.022 इंटू 10 raised to 23. सो दिस नंबर इज कंसिडर्ड एज अ एवोगाड्रोस कांस्टेंट. ओके, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, प्लीज़ हाँ देख लो, ऑक्सीजन एटम है, नॉट दी ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस यानी वो मॉलिक्यूल हो जाएगा. सो उसमें ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, 2, बिकॉज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन गैस इज O2. बट हियर ओनली टॉकिंग अबाउट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम. अब उसका वेट कितना होगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम का? What is the atomic mass of oxygen atom? 16. तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम. ओके, 1 मोल ऑक्सीजन एटम मीन्स 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम is equal to 6.0221367 into 10 raised to 23 atoms of oxygen. समझ गए कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में? 1 मोल ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे? 6.0221367 into 10 raised to 23 atoms of oxygen. Understood? समझ रहे हैं ना? ओके, प्लीज रिमेंबर द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना होगा वो 16 ग्राम. यानी 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम है आपके पास, तो उसके पास ये फिक्स नंबर होगा, एवोगाड्रोस कांस्टेंट. आगे बढ़ते हैं. सी ओवर हियर, वाटर मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ वाटर. ओके, 1 मोल ऑफ वाटर कितना होगा 1 मोल ऑफ वाटर में? मास 18 ग्राम. Okay, so 18 gram of water is equal to 6.0221367 into 10 raised to 23 molecules of water. Understood? 1 mole water is exactly equal to 18 gram water. कितना? 18 gram, क्योंकि molecular mass of water is 18. तो 6.0221367 into 10 raised to 23 molecules of water molecule. Okay, 1 mole of NaCl कितना मास होगा? 58.5. Why? Because NaCl हैविंग मॉलिक्यूलर मास 58.5, तो वो 58.5 ग्राम NaCl ले लेंगे. इट रिप्रेजेंट एज 1 मोल NaCl. कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे NaCl के? 6.0221367 इंटू 10 raised to 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl. सो प्लीज सी दिस थिंग्स. स्क्रीन पर देख लो कि ऑक्सीजन एटम 1 मोल है, वाटर मॉलिक्यूल 1 मोल है, NaCl इज ऑल्सो 1 मोल, बराबर. बट तीनों का मास अलग अलग है. ऑक्सीजन एटम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 ग्राम, 1 मोल ऑफ वाटर 18 ग्राम, 1 मोल ऑफ NaCl 58.5 ग्राम. बट पार्टिकल्स कितने देख लो, हर एक ये एलिमेंट या फिर कंपाउंड के, ऑक्सीजन, वाटर या फिर NaCl के फिक्स नंबर होंगे 6.0221367 इंटू 10 raised to 23 मॉलिक्यूल. सो एवरी 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस मे बी वेरिंग इन देयर मास. मास में डिफरेंट हो सकता है बट नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो सेम होंगे. एवोगाड्रोस नंबर 6.0221367 इंटू 10 raised to 23. ओके, प्लीज रिमेंबर बच्चों, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. नाउ विल गो फॉर द लास्ट टॉपिक, दैट इज मोलार मास. ओके, मोलार मास क्या है एग्जैक्टली, विल गोइंग टू सी. देखो, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा हमने, फॉर्मूला मास पढ़ा हमने. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स. मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास का यूनिट क्या था? स्मॉल u, दैट इज यूनिफाइड मास. करेक्ट ना? मॉलिक्यूलर मास एज वेल एज फॉर्मूला मास, यूनिट क्या था? स्मॉल u.
दैट इज यूनिफाइड मास। वॉट एवर मॉलिक्यूलर मास होगा ऑफ अ कंपाउंड या फिर फॉर्मूला मास होगा फॉर द एलिमेंट, उस मास को सिर्फ ग्राम ये यूनिट दे दो, इट बिकम्स अ मोलार मास। सी हियर द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, mass of 1 mole of a substance in element or a compound, okay, mass of 1 mole of a substance, it may be a element जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन है, या फिर कंपाउंड जैसे वाटर मॉलिक्यूल NaCl, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ओके, ऐसे कंपाउंड इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलार मास। अंडरस्टूड? अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड इट्स मोलार मास। यानी देखो अगर हम ऑक्सीजन की एग्जाम्पल ले लें, सो ऑक्सीजन एटम, what is the atomic mass, molecular mass of oxygen? 16 unified mass. What is the molar mass of oxygen? 16 gram. समझ गए? 16 U, that is molecular mass, 16 gram is the molar mass. Understood? Same way if we talk about the this one, water molecule, what is the molecular mass of water? 18 small u, that is 18 unified mass. मोलार मास कितना हो जाएगा उसका? 18 ग्राम पर मोल। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल हियर। एग्जांपल ऑफ सम एलिमेंट H and O. H atomic mass 1, molar mass 1 ग्राम पर मोल। अंडरस्टूड? ऑक्सीजन 16 U, that is unified mass, और उसका मोलार मास कितना होगा? 16 ग्राम पर मोल। सिमिलरली फॉर द कंपाउंड O2H2O, एटॉमिक मास कितना है फॉर द O2? 32 यूनिफाइड मास, उसका मोलार मास कितना हो जाएगा? 32 ग्राम पर मोल। और H2O 18 यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास, एंड दिस वन मोलार मास 18 ग्राम पर मोल। दिस इज ऑल अबाउट the molar mass of compounds and the elements. Okay, now moles of gases, ये जो हमने सब कंपाउंड्स पढ़े जनरली लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में पढ़े थे। ओके, मोल्स ऑफ दी गैसेस, अगर गैस है हमारे पास तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कैसे होंगे या फिर कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि उसका डायरेक्टली तो मास तो नहीं दिया होगा। अंडरस्टूड ना? लेट्स सी दैट थिंग्स। मेनी गैसेस एग्जिस्ट, मेनी सब्सटेंस जनरली एग्जिस्ट इन द गैसेस फॉर्म। ओके, 1 मोल ऑफ any gas occupies fixed number of a volume or fixed volume, that is 22.4 dm cube at standard temperature 0 degree Celsius and pressure 1 atmosphere. That condition is known as STP, capital S, capital T, capital P, यानी standard temperature and pressure condition. Standard temperature 0 degree Celsius, standard pressure 1 atmospheric pressure. ओके, सो कोई भी अगर गैस है तो उसका फिक्स वॉल्यूम होगा, कितना होगा? 22.4 dm cube. Understood? 22.4 dm cube यानी 22.4 लीटर। 1 mole of any gas containing fixed volume, that is 22.4 dm cube or 22.4 liter volume at standard temperature and pressure, means at 0 degree Celsius and 1 atmospheric pressure. बच्चों दो कंडीशन होती है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। वन इज कॉल्ड STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। दूसरा होता है NTP, कैपिटल N, कैपिटल T, कैपिटल P। NTP यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, वेयर नॉर्मल टेम्परेचर इज रूम टेम्परेचर, इट इज कंसिडर्ड 27 डिग्री सेल्सियस, 25 to 27 डिग्री सेल्सियस ओनली, एंड प्रेशर तो होता है 1 एटमॉस्फेयर ओनली, दैट इज सेम। यानी इफ you compare STP and NTP, if you want to compare the STP and NTP, क्या हो जाएगा फिर? in STP temperature is 0 degree Celsius, pressure is 1 atmosphere, and in NTP temperature is about 27 degree Celsius and the pressure is 1 atmosphere. So there is a difference in temperature only in both the condition. Understood? So how we'll find out the moles of any gaseous substance? Moles of gas, that is the number of moles of gas, small n. Volume of gas at STP, okay, volume of gas at STP divided by molar volume of gas. okay, whatever volume होगा गैस का जो भी दिया होगा divided by molar volume, that is considered as number of moles, or the ratio of these two things gives the number of moles of any gas. So इसके ऊपर भी हम लोग sums पढ़ेंगे in the next video. okay, so please बच्चों go through the whole video again and again, try to learn the whole concept. और स्पेशली उसमें मोल कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट बहुत 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 ही ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।